بہت شکریہ آپ سب کا. آپ سب یہاں پر موجود ہیں تاکہ ہم خداوند کی شکر گزاری کریں، اس کی حمد و ثنا کے وسیلہ سے، اس کی مہما کے وسیلہ سے، اور اسی طرح اس کے کلام کو سننے کے وسیلہ سے ہم سب برکت پائیں. خداوند کا شکر ہے کہ اس نے گزرے ہفتے میں ہم میں سے ہر ایک کی بڑی نگہبانی کی، مدد کی، حفاظت کی، اور ہمیں خطرات سے بچا کے، ناگہانی آفات سے بچا کے اپنی پناہ میں محفوظ رکھا. آج پھر حسب معمول کچھ دوست موجود ہیں اور کچھ موجود نہیں ہیں، لیکن خداوند کا شکر ہے کہ ہمیں یہ امید ہے، بلکہ یقین ہے کہ سارے بھائی جو آج نہیں آ پائے وہ کسی نہ کسی وجہ سے مصروف ہیں اور صحت مند اور تندرست ہیں. آج آپ سب میرے ساتھ مل کر تھوڑی دیر کے لیے خداوند کے پاک کلام میں سے نکالیں امثال کی کتاب، اس کا 3 باب. جی 5ویں سے 10ویں آیت تک. امثال، Proverbs chapter 3 verses 5 to 10. شبیر آپ پڑھیں گے یا حضرت جی آپ پڑھیں گی؟ جی پلیز پڑھیں، ہم غور سے سنیں. 5 سے 10 خدا کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے ہم سارے. اس کا 3 باب 5 سے 10 تک. سارے دل سے خدا پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر. اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور تیری رہنمائی کرے گا، وہ تیری رہنمائی کرے گا. تو اپنی ہی نظر میں دانش مند نہ بن، خداوند سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر. یہ تیری ناک کی صحت اور تیری ہڈیوں کی تازگی ہوگی. اپنے مال سے اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں میں سے خداوند کی تعظیم کر. یوں تیرے کھتے خوب بھرے رہیں گے اور تیرے حوض نئی مے سے لبریز ہوں گے. پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. خداوند کا شکر. آمین. دیکھیں جو آج کلام کا حصہ مسز وکٹر نے پڑھا ہے، اس میں کس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو عقل مندی اور دانائی کی کتاب ہے، اس میں یہ لکھا گیا ہے حصے میں 3 باب کی پہلی 5 آیت سے 10ویں آیت تک کہ کس طرح لکھا گیا ہے. اور یہ خداوند کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے کس طریقے سے ہم خداوند پر پورے دل سے، کیا لکھا ہے، سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنی فہم پر تکیہ نہ کر. ہم میں سے کون ہے جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ ہم بیوقوف ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہے. ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں سمجھتا کہ ہم میں سے کوئی بھی بیوقوف ہے. ہم سبھی اپنی اپنی دانست میں دوسرے سے زیادہ عقل مند سمجھے جاتے ہیں، ہے نا. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ مجھے پاپا سے زیادہ پتہ ہے اور مجھے ماما سے بھی زیادہ پتہ ہے، یا میں بھائی شمشیر سے زیادہ جانتا ہوں. اسی طرح بھائی شمشیر بھی سمجھتے ہیں کہ میں وکٹر سے زیادہ سمجھتا ہوں، ہے نا. ہم اپنے آپ میں ہر ایک ہی دانا ہیں، جبکہ خداوند خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اپنے سارے دل سے خداوند پر توکل کریں اور اپنے فہم پر نہیں. یعنی ہم اپنی دانش میں
अक्लमंद ना बने कि जो भी हम काम काज करें उसमें खुदावंद की रहनुमाई नहीं। लिखा है कि खुदावंद को पहचान, अपनी सब राहों में उसको पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा। हम लोग अपने आप को दाना समझते हैं और दूसरों से मदद या रहनुमाई नहीं लेना चाहते। हम जो भी बड़ा इम्पोर्टेंट कोई काम हो कहते कि ना उनका पता लगे। हम लोग सीक्रेटली प्लान बनाते हैं और फिर अपने प्लान्स में फंस जाते हैं और मुश्किल का सामना करते हैं, है ना। हम लोग इस तरह की अकल समझ रखते हैं कि हम प्लान बनाते हैं और फिर अपने प्लान्स को मुकम्मल होता नहीं देखते और परेशानी का सामना करते हैं। फिर अपने प्लान्स को मुकम्मल करने के लिए हम कोई ना कोई ऐसी राह ढूंढते हैं जिसमें समझें कि वो हमारा प्लान जो है वो सक्सेसफुल हो जाए, कामयाब हो जाए। जबकि हम दूसरी तरफ ये भी समझते हैं कि ये नेगेटिव है। हम समझते हैं उस प्लान को मुकम्मल करने के लिए हम कोई भी रास्ता इख्तियार करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा वो प्लान जो हमने अपनी अकल से बनाया है उसे मुकम्मल कर लें। जबकि खुदावंद का कलाम हमें ये सिखाता है कि हम सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कल करें और अपनी अकल पर, अपनी फहम पर, अपनी दानाई पर तकिया ना करें। और लिखा है अपनी सब राहों में उसको पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा। हमारी राहें जो हैं हमारी दानिस्त में बिल्कुल ठीक हैं। हम जो भी फैसला लेते हैं वो समझते हैं कि ये ठीक है और हमें इसमें से फ़ायदा होगा। मैं अपनी बात करता हूँ, हमारी ऑफकोर्स जो कामकाज है उसके मुताबिक मैंने ये जाना कि भी अगर ये छोटी गाड़ी में से प्रॉफिट इतना होता है या हमारे कामकाज में हमें मदद मिलती है और हमारा ये सिलसिला रोज़मर्रा की इनकम का चल रहा है, तो अगर हमारे पास ज़्यादा होगा तो हम और ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं। अब जबकि तकरीबन 1.5 साल होने को आ रहा है तो जो प्लान मैंने बनाया था वो अभी तक हमें सक्सेसफुल नज़र नहीं आ रहा और उस प्लान की वजह से मुझे और मेरी फैमिली को सफ़र करना पड़ रहा है। इसी तरह हम में से हर एक जो भी कोई प्लान बनाते हैं हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारा भला हो, लेकिन मेरे अजीज़ों खुदावंद खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि अपनी अक्ल पर, अपनी फहम पर तकिया ना कर बल्कि खुदावंद पर तवक्कल कर और अपनी सब राहों में उसको पहचान। हमारी राहें हमेशा जो है वो हमें लगता है कि बिल्कुल सीधी हैं, लेकिन खुदावंद का कलाम हमें ये सिखाता है कि जब हम किसी राह पे चलने शुरू करते हैं और अगर उसकी मर्ज़ी के बगैर वो राह हम चूज़ करते हैं तो हमें एंड जो है वहाँ मौत नज़र आएगी। आखिर जो है उस राह का मौत है। इसलिए खुदा हमें सिखाता है कि तंग दरवाजे से दाखिल हो। तंग दरवाज़ा मुश्किल हमें लगता है लेकिन उसका अंजाम जो है वो खुशी होती है, खुरमी होती है। यानी अगर हमारे पास थोड़ा है और अगर हम उसी में गुजारा करें बजाय कि हम दूसरी तरफ हाथ पांव मारें और अपने आप को मुश्किल में डालें, तो वो हमारे लिए परेशानी और हमारी फैमिली के लिए परेशानी और दुखों का बायस है। जबकि अगर हम खुदावंद में रहते हुए जो वो हमें अता करता है उसमें उसकी शुक्रगुजारी करें तो वो हमारे थोड़े में भी बरकत देता है और हमें इस काबिल बनाता है कि हम उस थोड़े में भी उसकी शुक्रगुजारी करते हुए दूसरों के लिए भी बरकत का बायस बने। जब देखें कि खुदा हमें सिखाता है कि अपने फलों से, पहले फलों से खुदावंद की ताज़ीम का, लेकिन हमारे पास जो एंड है
हम इस तरह करते हैं कि अच्छा तो खुद रख लेते हैं, और डोनेशन भी अगर देना है तो हम बिल्कुल देखते हैं कि भाई कितने हैं, काउंट करके हम खुदावंद को देते हैं, जबकि वो हमें काउंट करके नहीं देता। हम लोग खुदावंद के साथ भी चीटिंग करते हैं, और इस चीटिंग के वसीला से किसको दुख मिलता है, खुदावंद को या हमें? हाँ, हमें खुद को मिलता है ये दुख कि हम अपने आप में समझते हैं कि भी ये जो है ठीक है, इतने ही काफी हैं, जबकि वो तो हमें दरीचे खोल देता है बरकतों से, कि हम खुशी मनाते हैं, दूसरों के साथ शेयर करते हैं, और जब उसको देने की बारी आती है तो हम काउंट करते हैं कि भैया इन्हें पा देंगे, नो प्रॉब्लम। और घर में उसके जबकि लिखा है कि भी पहले फलों से, पहले फल जो मोटे मोटे होते हैं, ताज़ा ताज़ा, मतलब खूबसूरत लगते हैं दिखने में भी, लेकिन हम पहले उनसे नहीं करते। हम जो आखिरी फल है ना, जो छोटे छोटे और थोड़े बहुत ख़राब भी हों, उनसे खुदावंद की ताज़ीम करते हैं, तो फिर हमें भी वही मिलेगा जो हम कर रहे हैं। वो कहता है कि तेरे खत्ते भरे रहेंगे, और तेरे नई मैं से तेरे पैमाने जो है क्या होंगे, तेरे खूब और तेरे हौज नई मैं से लबरेज होंगे। हम अपनी नज़र में दाना बनते हैं, अपनी नज़र में अक्लमंद बनते हैं, अपनी नज़र में सबसे होशियार बनते हैं, और फिर परेशानी भी हम खुद ही उठाते हैं। जबकि खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है कि तू अपनी निगाह में दानिशमंद ना बन, खुदावंद से डर और बदी से किनारा कर। हम लोग बदी की तरफ गामजन होते हैं और खुदावंद से डरते भी नहीं हैं। हम लोग खुदावंद से डरते भी नहीं हैं और बदी की तरफ गामजन रहते हैं। हर एक वो काम जो खुदावंद को नापसंद है, मेरे अजीजों, बदी है। जो खुदावंद को नाखुश चीज़ें करती हैं वो बुराई है। ज़रूरी नहीं है कि हम बुरी औरतों के पास जाएं या जुआ खेलें या शराब पिएं। हर वो काम जो खुदावंद को नाखुश करता है और जिसे हम करते हैं, वो हमारे लिए परेशानी का सबब बनता है। चाहे वो नाजायज़ नफ़ा हो, चाहे वो किसी की ऐब जोई हो, चाहे किसी की वो चुगली करें हम, चाहे किसी को हम धोखा दें, कोई भी हो काम जो खुदावंद को नाखुश करता है, वो बदी है। और इस तरीके से हम खुदावंद को नाखुश करते हैं। और अगर हम खुदावंद को नाखुश करते हैं तो इसका मतलब है हम अपने आप को परेशानी में डालते हैं। जब हम खुद परेशान होंगे तो हम दूसरों के लिए कैसे बरकत का बायस बन सकते हैं? हम दूसरों को तसल्ली नहीं दे सकते, हम दूसरों की रहनुमाई नहीं कर सकते, जबकि हम खुदावंद की नाफरमानी कर रहे हैं। खुदावंद की ताबेदारी में हमारे लिए ब्लेसिंग है और हम दूसरों के लिए ब्लेसिंग बन सकते हैं। ज़रूरी है कि हम जो भी काम करें, जो भी मंसूबा बनाएं, उसमें हम खुदावंद की रहनुमाई हासिल करें। अब खुदावंद की रहनुमाई कैसे हम हासिल कर सकते हैं? कोई आइडिया है? कोई आइडिया है कि किस तरह हम खुदावंद से हम कलाम हों और वो हमारी रहनुमाई करे? कभी एक्सपीरियंस हुआ है कि खुदावंद हमारे कैसी रहनुमाई करता है? कभी गौर किया? मेरा नहीं ख्याल कि हमने कभी गौर किया। ये खुदा का कलाम जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें मुख्तलिफ तरीक़ों से स्टोरियाँ मिलती हैं लिखी हुई, दूसरों के एक्सपीरियंस मिलते हैं लिखे हुए। ये हिस्ट्री की किताब जो हम पढ़ते हैं और समझते हैं कि ये खुदा का कलाम है, हम देखें कि हमें हर एक ज़िंदगी से रिलेटेड तजर्बे मिलते हैं और किस तरीके से लोगों ने खुदावंद की फरमाबरदारी करके और नाफरमानी करके जंगों में फतह पाई, बीमारियों से शिफा पाई, बादशाह बन गए, है ना? कि ये जब खुदावंद की ताबेदारी की गई तो
खुदा ने उन लोगों को सरफराजी अता की। खुदावंद के हजूर नजराने पेश किए तो खुदावंद ने उन्हें बरकत दी। आप देखें, अगर हम इमाल की किताब में देखें तो एक जोड़ा था शुरू की कलीसिया में, तो खुदावंद के लोग जो थे यीशु पर जो ईमान लाए तो फिर उन्होंने अपने माल मता भी बेच दिया और खुदावंद के लिए डेडिकेट कर दिया। अब एक कपल ऐसा था, उनमें से उन्होंने कुछ रख लिया और जब वो खुदावंद के घर में लेके आए तो जो खुदा के खादिम थे पतरस, उसने कहा कि भी तूने ये क्यों ऐसा किया, कि इरादा तो पूरा किया और फिर जो उसमें से रख लिया, तूने क्यों खुदा के रूह को, मतलब उसके रूह की नाफरमानी की। कमिटमेंट ये थी कि मैं ये बेच के तो खुदावंद को दूंगा, और जो देने का वक्त आया, जब बिक भी गया तो देने का वक्त आया तो उसमें से कुछ रख लिया। यानी दयानतदारी नहीं दिखाई, ईमानदारी नहीं दिखाई कि जिसके लिए मैं कर रहा हूँ या हम लोग कर रहे हैं वो इस काबिल है कि हमें मुहैया करता रहे। उन्होंने उस इरादे को बदल दिया और खुदा के सामान में से जो उन्होंने डेडिकेट खुदा के लिए कर दिया था उसमें से कुछ रख लिया। तो जब वो देने के लिए पहुंचे तो अभी वो हैरान रह गए कि भी इनको कैसे पता चल गया कि हमने ये रख लिया है। तो वो उस खौफ की वजह से मियाँ और बीवी दोनों फौत हो गए। बजाय वो बरकत पाते और लोगों के लिए ब्लेसिंग का बायस बनते, घर भी गया और वो खुद भी मर गए। अब गौर करने की बात यह है कि उन्होंने तो ये खुदा के लिए कर किया था और फिर नीयत खराब हुई और वो उसमें से रख लिया। देखें कि किस तरीके से खुदा हमें ये सिखाता है कि हम बेईमानी ना करें। जब हम खुदा के कलाम को याद रखेंगे तो फिर हमें ये फैसला करने का मौका मिलेगा कि खुदा हमें ये सिखा रहा है कि हम बेईमानी ना करें। खुदा का कलाम जो हमारी राहों के लिए रोशनी है और हमारे कदमों के लिए चिराग है, हमारी रहनुमाई करता है। वो हमें हमारे साथ रहता है। उसका कलाम जो है वो खुदा के सूरत में हमारे साथ रहता है और हमें अक्ल और दानाई बख्शता है कि हम दुरुस्त फैसला कर सकें। जब हम उसके कलाम को याद नहीं रखेंगे तो फिर हम गलत फैसले करेंगे और जब गलत फैसले करेंगे तो हम और हमारा घराना परेशानी का सामना करेगा। जब एक आदमी निजात पाता है तो उसका घराना भी निजात पाता है। क्यों? लिखा ना कि तू और तेरा घराना तौबा कर और बपतिस्मा ले और तू और तेरा घराना निजात पाएगा। अगर एक आदमी की वजह से घराना निजात पाता है तो एक आदमी की परेशानी और नाफरमानी की वजह से घराना भी दुख उठाता है। तो ज़रूरी है कि हम ना अपने आप को परेशानी में डालें और ना अपने ख़ानदान को। खुदावंद पर तकिया करें, अपने फहम पर नहीं, बल्कि खुदावंद के ऊपर तवक्कल करते हुए उस पर भरोसा रखें और उसके पीछे चलें। इस तरीके से अगर हम अपनी नज़र में दानिशमंद नहीं बनेंगे तो हम बरकत पाएंगे, अक्लमंद नहीं बनेंगे तो बरकत पाएंगे। अगर हम खुदावंद पर डिपेंड करेंगे तो वो हमारे लिए खुशी, तसल्ली और इत्मीनान का बायस होगा। लिखा है कि खुदावंद के यहाँ अपने नजराने जो हैं वो पूरे तौर पर, यानी पहले फलों से खुदावंद की ताज़ीम करें तो उसका रिवार्ड क्या होगा? क्या होगा रिवार्ड? लिखा, आगे लिखा हुआ है। पहले तो हमारे पास बीमारी नहीं रहेगी और हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी और ये तेरी हड्डियों की ताजगी होगी, यानी हम मजबूत रहेंगे, सेहतमंद भी रहेंगे। किस तरीके से? पहले तो हमें बदी से बचना है, यानी हर वो काम जो खुदा को नाखुश करता है उससे बचें और फिर इस तरीके से हम उससे बरकत पाए। रिवार्ड किस तरह होगा कि हमें सेहत और तंदुरुस्ती खुदावंद मुहैया करता रहेगा।
वो हमारी हिफाजत करता रहेगा। और इसी तरीके से अगर हम उसके हाँ जो हमने कमिट किया है, जो उसको फॉलो करते हैं और उसके हाँ नज़र गुजरानते हैं, तो इससे रिवार्ड क्या मिलेगा हमें, ये बरकत मिलेगी हमें। कैसे कि हमारे खत्ते खूब भरे रहेंगे और हमारी जो मैं है वो कम नहीं होगी, यानी वो हमारी जो लबरेज रहेंगी। क्या हौज, हौज छोटी चीज़ नहीं है, हौज तो मतलब बड़े बड़े होते हैं ना, तो हमारे हौज जो भरे रहेंगे। अब देखें कि हम मैं नहीं पीते, हम गंदम भी नहीं खरीदते, लेकिन ये ज़रूरी है कि उसका जिस तरीके से हम खुदावंद के हुजूर पेश करते हैं, खुदावंद भी हमें, वो तो हमें उसी के नज़रिए में से हमने उसे रिटर्न करना है और बरकत पानी है दिली तसल्ली और इत्मीनान से, खुशी से। अब बहन यहाँ बैठी है और वो हजारों किलोमीटर दूर इंडिया में उस बच्चे के लिए दुआ कर रही है। ये खुदावंद पर एतमाद और उस पर भरोसा है कि वो यहाँ भी रहकर दुआ की जवाब को देता है। दुआ जब हम करते हैं तो वो उसका जवाब देता है। तो वो पूरे ईमान के साथ और करला कर गिड़गिड़ा कर खुदावंद के सामने दुआ कर रही है कि खुदावंद उस बच्चे पर रहम करे। वो भलाई का काम कर रही है। और हम जब बदी की तरफ जाएंगे तो हम ना तो किसी के लिए दुआ कर पाते हैं और हमारे जो मंसूबे हैं वो भी फेल होते हैं। हम खुदावंद पर मुकम्मल भरोसा रखें, तभी खुदावंद हमें खुशियों से बरकतों से माला माल करता रहेगा। हम खुदा के घर में आते हैं, कभी आ जाते हैं कभी नहीं भी आते, लेकिन ज़रूरी है कि हम पूरे तौर पर उसको पहचाने अपनी राहों में। हमारी सभी राहों में खुदा हमारे साथ मौजूद है, तो हमें खुशी और खुर्मी और तसल्ली और इत्मीनान हमेशा हमारे दिलों में भरा रहेगा। हमें डर नहीं होगा, हमें फिक्र नहीं होगी, हमें परेशानी नहीं होगी। खुदा हमारी हिफाजत करता रहेगा। किस तरीके से देखें, कल भी मैं शेयर कर रहा था कि जब हम बच्चे जानते हैं कि जब मैं रोज़ घर से निकलता हूँ तो मैं दुआ करता हूँ कि जिस तरह तू सलामती से लेके जा रहा है उसी तरह सलामती से घर में वापस लेके आना। तो मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, खुदावंद किस तरीके से हमारी हिफाजत करता है, हम रोज़ एक्सपीरियंस करते हैं उसकी हिफाजत का, उसकी प्रोटेक्शन का। काम काज के दौरान, आने जाने के दौरान हमें बाज़ औक़ात ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं कि जो हम समझते हैं कि ये हमारे बस की बात नहीं थी, ये खुदावंद की निगहबानी है, उसने हमें बचाया। रोज़ हम सड़क पे चलते हैं, कोई ना कोई ऐसा वाक़या रूनुमा होता है जिससे हम खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं कि उसने हमें अपनी हिफाजत में रखा है। उस पर तवक्कुल करना खुली तौर पर हमारे अपने लिए बरकत का बाइस बनता है। खुदावंद को तो उसका कोई फ़ायदा है नहीं, हम मर भी जाए कोई और उसकी सताइश करता रहे। हम हैं या नहीं, खुदावंद के काम नहीं रुकते, उसके काम चलते रहते हैं। लेकिन जो खुदा ने हमें इस दुनिया में भेजा है उसका कोई ख़ास मकसद है, तो हम जाने, अपनी सब राहों में उसको पहचाने, तो फिर वो हमारी रहनुमाई करता रहेगा। जब हम उसको पहचानेंगे तो वो हमारी रहनुमाई करता रहेगा। हर एक बात में उसकी शुक्रगुजारी करें, अपने नजरानों के साथ, हम्द सना के साथ और उसके साथ वफादारी के साथ। हम कमिट करने अपनी ज़िंदगियाँ कि हमने हर एक राह में उसको पहचानना है। और मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, ये खुदावंद का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये हमारे लिए बरकत का बायस बनेगा। और जब खुदावंद हमारी ज़िंदगी में नज़र आएगा
तो इसके पहली आयत में लिखा हुआ है तभी तू इंसान और खुदा की नज़र में मकबूलियत हासिल करेगा। इससे पहली आयत में अगर हम देखें इसी चैप्टर में तो लिखा हुआ है, चौथी आयत में लिखा है तीसरे बाब की, यूं तू खुदा और इंसान की नज़र में मकबूलियत और अक्लमंदी हासिल करेगा। जब हम खुदावन को अपनी राहों में पहचानते हैं, सभी राहों में उसको पहचानते हैं, तो वो हमारी रहनुमाई करता है, हमें तन्हा नहीं छोड़ता। लिखा है मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये उसके अल्फाज हैं जो कभी तब्दील नहीं हो सकते। उसका कलाम परफेक्ट कलाम है जो पूरा होता है हमारी ज़िंदगियों में। हम उसके एक्सपीरियंस कर चुके हुए हैं कि खुदा का कलाम पूरा होता है, वो टल नहीं जाता, तब्दील नहीं होता, बल्कि पूरा होता है। तो जब हम एक्सपीरियंस कर चुके हुए हैं तो और कितना इंतज़ार करवाना है उसको कमिटमेंट के लिए। ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगियाँ उसको मुकम्मल तौर पर दें और पीछे चलने का अहद करें, तभी हमारे खत्ते भी भरे रहेंगे और हमारे हौज भी मैं से भरे रहेंगे, खाली नहीं होंगे, हमें कमी नहीं होगी। और ये है खुदावंद की शुक्रगुजारी, उस पर मुकम्मल भरोसा हमारे अपने लिए बरकत का बायस है। क्या हम बरकत नहीं चाहते खुदावंद से? हम हर वक्त खुदावंद से बरकत चाहते हैं, हर एक काम में उसकी रहनुमाई मांगते हैं, दुआ करते हैं कि हम तो किसी भी काम करने के लायक नहीं हैं, हर एक काम के लिए हमें उसकी रहनुमाई चाहिए, उसकी मदद चाहिए, उसकी हिफाजत चाहिए। अगर हमें थोड़ी सी तकलीफ हो तो हमारी बेबसी नज़र आती है, खुजली शुरू कर देते हैं। तकलीफ थोड़ी भी हो ना तो हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते जब तक उससे रिलीफ ना मिल जाए। तो हम तो किसी लायक ही नहीं हैं, तो फिर मगरूरी कैसी? ज़रूरी है कि हम हर एक तरीके से खुदा उनके आगे झुकें और उससे बरकत पाएं। वो हमें हर तरीके से बरकतों से आसूदा करना जानता है, हमें दुखों से, तकलीफ़ों से, मुश्किलों से, परेशानियों से वो रहाई देने में कादिर है। तो जब वही सब कुछ कर सकता है तो फिर सरेंडर क्यों ना करें? ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगियाँ पूरे तौर पर खुदावंद के हवाले करें और अपनी सब राहों में उसको पहचानें और वो हमारी रहनुमाई करेगा। जब हम उसको पहचानेंगे तो फिर वो हमारी रहनुमाई करेगा, हमें तसल्ली भी होगी, इत्मीनान भी होगा, हम सेहतमंद भी होंगे और हमारे खत्ते भी खूब भरे रहेंगे। हमारी जो हौज हैं वो भी नई में से लबरेज रहेंगे, यानी हमें तसल्ली और इत्मीनान रहेगा। और अगर ऐसा नहीं है तो नेगेटिव उसका क्या है? बीमारी, दुख, तकलीफ, परेशानी, मुसीबत जो कभी जुदाई नहीं होती हमसे। अगर नाफरमानी है तो ये चीज़ें हैं। तो हम क्या चाहते हैं? बीमारी, दुख, तकलीफ चाहते हैं, मुसीबत, परेशानी चाहते हैं, या तसल्ली और इत्मीनान और खुशी चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव चाहते हैं, कोई भी नहीं चाहता। लेकिन पॉजिटिव रहने के लिए हमें क्या करना है? खुदावंद की रहनुमाई का चाहिए। लिखा है कि हर एक काम में खुदावंद को पहचाना, अपनी सब राहों में, चाहे हम सीधा जाएं, उल्टा जाएं, आगे जाएं, पीछे जाएं, ऊपर जाएं, नीचे जाएं, सब राहों में उसको पहचाने, तभी वो हमारी रहनुमाई करेगा। लेकिन जब हम उसको इग्नोर करेंगे तो क्या होगा? वो मगरूरों का मुकाबला करता है और फरोतनों को तौफीक बख्शता है। तो देखिए फ़ायदा किसको है, खुदा को या हमें? हम ये सब जानते हैं कि फ़ायदा भी हमारा ही है, लेकिन फिर भी हम उसकी नाफरमानी करते हैं, उसके कलाम की नाफरमानी करते हैं। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों,
अपने आप में खुशी और तसल्ली पाने के लिए और दूसरों के लिए बरकत का बायस बनने के लिए हम ये काम कर लें कि हम खुदावंद को पहचान लें अपनी सब राहों में, तो हमारे सारे रास्ते हमार होंगे। ये उसका वादा है और वो अपने वादों को पूरा करने में कादिर है। हम सब दुआ मांगे और खुदावंद से इल्तिजा करें कि वो हमेशा हमारी रहनुमाई करता रहे। मैं दरख्वास्त करूँगा सलीम से कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें। करते हैं अच्छे दिन के लिए, इस वक्त के लिए और तेरे कलाम के लिए खुदावंद जो कि हमें सिखाता है खुदावंद कि हम तेरे ऊपर रिलाई करें और तेरे साथ कमिटमेंट के साथ चलें खुदावंद और अपना सारा मतलब ट्रस्ट तेरे ऊपर रखें खुदावंद। सब भाई बहनों की दुआ करते हैं जो कि यहाँ मौजूद हैं, उन सबको बड़ी बरकत दे अपने कलाम के वसीले से भी कि हम आपके कलाम को समझें और उस पर अमल करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें और इससे हम सबको बड़ी बरकत देता है। सब कुछ मांगते तेरे के दोस्त में। आमीन। थैंक यू सलीम।